Welcome to FK Super Classes. In today's lecture, I will discuss matter in our surroundings. This is chapter 1 for class 9th Science Chemistry. It is the second lecture. In the first lecture, I have already explained physical nature of matter. I also explained in detail characteristics of particles of matter and also discuss states of matter. In this lecture, I will explain can matter change its state? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? हमने जो पढ़ा था, जो मैटर के स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो सकता है मैटर? क्या मैटर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? व्हाट डज interconversion of matter mean? I will explain this in detail. We will also see effect of change of temperature and effect of change of pressure on change of states of matter. In this lecture, I will also see what is evaporation and what are the factors affecting evaporation and how does evaporation cause cooling. So, today's lecture I will discuss this part and this part. In the first lecture I have already explained this one and this section. So with today's lecture this topic will be completed. In today's lecture I also discuss some questions. एक बार मैटर को रिकॉल कर लेते हैं. What is matter? Matter as something which has mass and occupies a space, that is volume. कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, वो मैटर कहलाएगा. Hence everything we see around us is matter. इसलिए हम जो भी चीज़ देखते हैं वो क्या है? मैटर है. क्यों? इसलिए कि उसके पास मास है, इसलिए कि उसके पास वॉल्यूम है. For example, a star that twinkle, the sun that shines, the food we eat, bricks we use to make buildings, water in oceans and rivers, rocks that form mountains, etc. All of these can be brought under a single umbrella called matter. सारी चीज़ें ये मैटर है. तारे जो टिमटिमा रहे हैं, सूरज जो चमक रहा है, खाना जो हम खा रहे हैं, ईंट जिससे हम घर बना रहे हैं, पानी जो नदी समुद्र में बह रहे हैं, पत्थर जो माउंटेन्स बना रहे हैं, ये सब चीज़ क्या है? All of these can be brought under a single umbrella called matter. ये सारी चीज़ें मैटर है. क्यों मैटर है? इसलिए कि इसके पास मास है, इसके पास वॉल्यूम है. But does all the matter that we see exhibit the same physical properties? क्या सभी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं. Obviously not. A block of wood is continuous while sand particles are coarse. Similarly, salt particles are soluble in water while sand particles are not. इसलिए सभी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकते हैं. All these properties are known as physical properties. हर मैटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है. The interparticle force of attraction and the kinetic energy of the particles primarily determine the physical state of any matter. हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ही डिफाइन करते हैं मैटर को. वहाँ हमने पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही डिफाइन करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को। लिंक हमने अपने पहले लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले आप लेक्चर फर्स्ट को पढ़ें, फिर आपको ये लेक्चर बहुत ईजिली आसानी से समझ में आएगा। कैन मैटर चेंज इट स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? क्या मैटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो सकता है? क्या मैटर गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? व्हाट डज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर मीन? On increasing the temperature, the kinetic energy of the particles of the matter increases. जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स के हैं वो बढ़ जाता है। एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट विथ हायर एनर्जी, वो हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेट करने लगता है। Therefore, the interparticle force of attraction between the particle reduces. जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो घट जाता है, कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो पार्टिकल्स है ना वो वाइब्रेट करने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एंड द पार्टिकल्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम देयर पोजीशन एंड बिगिन टू मूव फ्रीली। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से पार्टिकल जो है अपने पोजीशन से डिटैच हो जाते हैं और फ्रीली घूमने लगते हैं। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिन टू चेंज, जिसकी वजह से जो मैटर के स्टेट है ना वो चेंज होने लगते हैं। सॉलिड में कॉम्पैक्ट होती है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, आपने एनर्जी दे दिया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो वाइब्रेट करने लगा, उसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो गए, हेंस द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाने लगा। सॉलिड अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड। सिमिलरली लिक्विड ऑल्सो अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस। अगर लिक्विड स्टेट में है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे, वो वाइब्रेट करने लगेंगे हायर एनर्जी के साथ, हेंस लिक्विड अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस। इस तरीके से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट डज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर मीन? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर से आप क्या समझते हैं? अभी हमने आपको समझाया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। Interconversion of matter refers to the change from one state to another. It is a process by which matter changes from one state to another and back to its original state without any change in its chemical composition. यहाँ पर स्टेट चेंज होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, but the chemical composition will remain same. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हाँ, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो कोई तो टेम्परेचर होगा जहाँ पर सॉलिड लिक्विफाई होगा, वो लिक्विड स्टेट में एंट्री करेगा, और जब लिक्विड से गैस में जाएंगे तो एक खास टेम्परेचर होगा जहाँ पर लिक्विड से गैस में एंट्री होगी। डिटेल में समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट हो जाए, लिक्विड बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, ये सब टेम्परेचर का मेजरमेंट है, एक ख़ास नाम दिया गया चूँकि उस टेम्परेचर पे कुछ ख़ास काम हो रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आइस सॉलिड से लिक्विड में किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द 0 डिग्री सेल्सियस is the melting point of
ice. As the melting point, these two phases, that is solid and liquid, are in equilibrium. That is, at this point both solid state and liquid state exist simultaneously. इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वाटर के केस में, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों फेज सॉलिड और लिक्विड आपको दिखाई देंगे. They will be in equilibrium. That is, at this point both solid state and liquid state exist simultaneously. आगे हम समझेंगे कि कब वो लिक्विड में रहेगा, कब वो सॉलिड में रहेगा, चूँकि एक हिडन टेम्परेचर होता है जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. अभी समझने के लिए उसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग पॉइंट पे आपको दोनों स्टेट देखने को मिलेंगे, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट. कब सॉलिड लिक्विड हो जाएगा उस टेम्परेचर पे? जब उसको लैटेंट हीट मिल जाएगा तो फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. जब तक लैटेंट हीट नहीं मिलेगा तब तक वो सॉलिड स्टेट में रहेगा उस मेल्टिंग पॉइंट पर भी. बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. The boiling point for any material is the temperature point at which the material transform into the gas phase from the liquid phase. Liquid phase से gas phase में convert होता है, उस temperature को हम क्या बोलते हैं? Boiling point. यहाँ पर हो जाएगा from the liquid phase, इनकी जगह पे from कर दीजिएगा. The boiling point for any material is the temperature point at which the material transform into the gas from the liquid phase. This happens at 100 degree centigrade for water. Water के केस में boiling point क्या हो जाएगा? 100 degree centigrade. The Celsius scale was in fact created on the basis of ice water melting point and the liquid water vapor boiling point. जो सेल्सियस स्केल है ना वो इसी पर बेस्ड है, आइस वाटर के मेल्टिंग पॉइंट एंड लिक्विड वाटर वेपर के बॉइलिंग पॉइंट. इसी स्केल पे सेल्सियस स्केल को क्रिएट किया गया है. The boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Boiling point पे क्या होगा? जो वेपर प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा. आपने समझा यहाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. चूँकि हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं इसलिए इन दोनों टेम्परेचर का आपको नॉलेज होना चाहिए. फ्यूज़न. फ्यूज़न किसको बोलते हैं? जब दो छोटे छोटे एटम मिलकर के एक बड़ा एटम बनाता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम फ्यूज़न बोलते हैं. When two atoms collide to create a heavier atom, such as when two hydrogen atoms combine to create one helium atom, this process is known as fusion. जब दो एटम मिलते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए और एक हीलियम एटम को बनाया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्यूज़न. और इस प्रोसेस में बहुत से एनर्जी रिलीज होते हैं. दिस प्रोसेस जनरेट्स enormous amount of energy, many times more than fission, and power the sun. सूरज में जो रिएक्शन चल रहा ना वो यही रिएक्शन है फ्यूज़न रिएक्शन, जहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके एक हीलियम एटम बना रहे हैं और इस प्रोसेस में बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है. एंड दिस प्रोसेस जनरेट्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से सन जो है इतना हॉट है. Furthermore, it doesn't generate radioactive fission product. The melting point at which ice, a solid, turns to water, a liquid, is 0 degree centigrade. मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है? वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल की बात कीजिएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इस तरीके से हम एक
रिलेशन यहाँ समझ सकते हैं कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो क्या कीजिएगा, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा, इसमें 32 ऐड कर दीजिए तो आपको आ जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन पूछे तो आपको सिंपली इसमें 32 ऐड कर देना है। जो भी सेल्सियस स्केल है उसमें आप +32 कर दीजिएगा तो आपको फ़ारेनहाइट स्केल में वो मेज़रमेंट मिल जाएगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एंड आइस दोनों मिलेंगे, जिनको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मिल जाएगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा हीट है, ये एडिशनल हीट है अपार्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कंडीशन है उससे। जिसको लैटेंट हीट नहीं मिलेगा वो आइस स्टेट में होगा, और जिसको लैटेंट हीट मिल जाएगा तो वो आइस से वाटर बन जाएगा अगर गिवन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो। It is the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. Melting point पे 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसीलिए हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे देखा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एंड आइस बोथ एग्जिस्ट। इसका रीज़न यही है कि जहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं मिला है तो वो तो आइस में होगा, जिसको मिल जाएगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एट मेल्टिंग पॉइंट, that is 0 degree centigrade. Latent heat of fusion, also known as enthalpy of fusion, is the amount of energy that must be supplied to a solid substance, typically in the form of heat, in order to trigger a change in its physical state and convert it into a liquid when the pressure of the environment is kept constant. Latent heat of fusion क्या है कि आपको मेल्टिंग पॉइंट पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी सॉलिड सब्सटेंस को अगर उसके स्टेट को चेंज करना है, लिक्विड में लाना है तो। ये नहीं कि आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो सारे सॉलिड जो है लिक्विड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न is important. This additional heat energy is required to change solid into liquid at its melting point. Latent heat of vaporization, इसी तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एंड वाटर वेपर बोथ विल एग्जिस्ट। हाँ, जिसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगा, ये एडिशनल हीट जिसको मिल जाएगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो वाटर स्टेज में ही रहेगा। तो स्टेज चेंज करने के लिए एक तो कंडीशन है कि वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, दैट इज़ द केस ऑफ वाटर, दिस इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो होना ही चाहिए। साथ में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होना चाहिए। अगर ये एडिशनल हीट नहीं है तो वो अपने लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। It is the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point. Boiling point पे जो हीट एनर्जी चाहिए लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए वही लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दोनों फेज मिलेंगे, लिक्विड भी गैस भी, दैट इज वाटर एंड वाटर वेपर। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। यहाँ लिक्विड फेज आपको नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा सॉलिड है, कुछ देर के बाद वो सॉलिड आइटम आपको दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स व्हाट? इट चेंजेस टू गैस। ये मत कहना कौन गायब कर दिया। द ट्रांजिशन ऑफ a substance directly from its solid phase to gaseous phase without
changing into the liquid phase is called sublimation. सब्सटेंस का डायरेक्टली ट्रांजिशन होना फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज, सॉलिड से गैस की तरफ, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज, लिक्विड में नहीं जाना है उसको, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन क्या है? द फेनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट undergo a spontaneous transition to gaseous phase at any temperature below its boiling point. लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में ट्रांजिशन होना, और वो भी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, दिस फेनोमेना इज नोन एज इवेपोरेशन. The phenomena by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. ये ध्यान रखिएगा, evaporation कब हो रहा है? Below boiling point. अगर boiling point पे होगा तो क्या कहेंगे? Vaporization. और boiling point से कम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड जो है गैस में ट्रांजिट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम? इवेपोरेशन. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लॉथ्स इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर. जो कपड़े सूखते हैं, जो गीले कपड़े हैं वो सूख रहे हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, वहाँ तो बॉयल तो नहीं कर रहे हैं ना भाई, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही तो सूख रहा है. गीले कपड़े का सूखना, ये क्या है? एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का. ये इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करता है. अब यहाँ देख लीजिए, सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में, तो ये जो फेज आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, दैट्स द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द हीट, दिस इज द हीट एनर्जी. एक्स एक्सिस किसको शो कर रहा है? हीट एनर्जी को. तो यहाँ पर टेम्परेचर सेम है बट हीट को हम बढ़ा रहे हैं. यहाँ देख लीजिए, जिसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और यहाँ पर भी देख लीजिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे टेम्परेचर एज इट इज़ है बट हीट एनर्जी जो है हम उसको दे रहे हैं. तो यही जो एडिशनल हीट एनर्जी है ना इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट चेंज. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न is responsible for changing solid into liquid at melting point, and latent heat of vaporization is responsible for changing liquid to gas at boiling point. Factors affecting evaporation. कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर. टेम्परेचर, the rate of evaporation increases with an increase in temperature. इवेपोरेशन बढ़ जाएगा जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे. सो इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा. सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन बढ़ेगा. ह्यूमिडिटी, the rate of evaporation decreases with an increase in humidity. अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घट जाएगा. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ह्यूमिडिटी मीन्स क्या है? कि ऑलरेडी वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर. जो एयर है वो लैडेंड विथ वाटर है. एयर में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक्स्ट्रा वाटर कैसे लेगा? आपको भूख लगेगी तभी तो आप खाना लोगे. अगर भूख नहीं है तो कम कम लोगे ना. तो रेट आपके खाने का क्या रहेगा? जब भूख नहीं लगी तो कम ही रहेगा ना. तो वही चीज़ है, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. विंड स्पीड, यस, द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. जैसी जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. तो आपने देखा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, बट ह्यूमिडिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के. कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, इस पर डिस्कस करते हैं.
अब आप लिक्विड से गैस में जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको आपको ओवरकम करना होगा। उसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो सराउंडिंग से मिलेगा। So during evaporation, the particle of a liquid absorb energy from the surrounding to overcome the interparticle force of attraction and undergo phase change. तो इवेपोरेशन के वक्त में क्या होता है कि जो लिक्विड है ना वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है और फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीकन करता है, उसको ब्रेक करता है, फिर वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है। The absorption of heat from the surrounding make the surroundings cools. अगर आपने कहीं से हीट ले ली है तो वहाँ पर हीट तो कम हो जाएगी। सपोज़ कीजिए सराउंडिंग का हीट जो था वो 15 जूल था, आपने 5 जूल यूज़ कर ली तो कितना बचा, 10 जूल बचा। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। तो 5 डिग्री तो कम हुआ ना टेम्परेचर। तो इस तरीके से हीट लेने की वजह से सराउंडिंग क्या हो गया, ठंडा हो गया। चूँकि हीट क्यों चाहिए, हीट इसलिए चाहिए ताकि वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सके, वो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके, तभी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी। जब पसीना बॉडी से निकलता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वो डाउन होता है। आवर बॉडीज वाटर इवेपोरेट्स यूजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस एंड लोअरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एज अ रिजल्ट। जो हमारा वेट है उसका 2/3 वेट क्या है, वो वाटर है। अब वो वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो कहाँ से एनर्जी लेगा, बॉडी से लेगा। जब बॉडी से एनर्जी ले लिया तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कहाँ से लेगा, बॉडी से लेगा। जब बॉडी से वो टेम्परेचर ले लिया तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। सो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से कम हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग। कुछ एप्लीकेशन देखते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग पे। आवर बॉडीज वाटर इवेपोरेट्स using energy in the process and lowering our body temperature as a result. हमारे बॉडी का जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ, बॉडी से टेम्परेचर लिया। जब बॉडी का टेम्परेचर यूज़ हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, बिकॉज इट हैज़ सप्लाइड सम टेम्परेचर टू द वाटर so that water change to water vapor, hence the body's temperature lowers down. तो इस तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है ड्यूरिंग स्वेटिंग। टू कीप आवर बॉडीज कूल वी स्वेट अ लॉट। अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करते हैं, परस्पायरेशन बहुत होता है, पसीना बहुत निकलता है। वी ड्रेस इन कॉटन ड्यूरिंग समर। समर में हम लोग कॉटन फैब्रिक को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, एक तो कॉटन जो है बहुत पावरफुल वाटर एब्जॉर्बेंट है, वाटर को सोखता है। वाई, बिकॉज ये पोरस होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कॉटन में जो है देखिएगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। जैसे अपने स्किन पे छेद होते हैं ना, हमारा स्किन भी जो है ना वो पोरस है। उसी तरीके से कॉटन जो होता है ना वो बहुत पोरस होता है। तो उससे क्या फ़ायदा है, एक तो वाटर एब्जॉर्बेंट हो गया, बेहतरीन वाटर एब्जॉर्बेंट। इट अलाउज मोर पर्सपायरेशन टू कम, और उससे जो है पसीना जो आ रहा है तो उसको सबको एब्जर्व कर ले रहा है, एंड प्रोमोटिंग मोर इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन में भी मदद करता है जिससे आपको कूल फील हो। इवेपोरेशन जहाँ भी होगा तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को यूज़ करता है। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर को यूज़ कर लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। पर्सपायरेशन, पर्सपायरेशन क्या है, perspiration is the liquid that comes out on the surface of skin when we are hot or frightened. जब हमारे बॉडी पे लिक्विड आता है, जब हम गर्म होते हैं, जब हम बहुत मेहनत का काम कर रहे होते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, या कभी कभी जब हम डर जाते हैं तब भी हम लोग पसीने पसीने हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सपायरेशन। एग्जाम्पल, हैंड्स वर वेट विथ पर्सपायरेशन।
जो हाथ है उस पर पसीने का आना, जो बॉडी वाटर है वो हमारे स्किन पे आए, जब हम हॉट फील करें या गर्मी की वजह से हो, फिजिकल वर्क करने की वजह से हो या डर की वजह से, इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सपैरेशन। वी हैव अ कूलिंग इफेक्ट व्हेन वेयरिंग कॉटन क्लोथिंग बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए हम जब कॉटन क्लोथ पहनते हैं ना तो हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। क्यों? एक तो पोरस होता है ये, इट रिजल्ट इन मोर वाटर एब्जॉर्प्शन and help more perspiration to come and also promote more evaporation. Evaporation is what transpiration ultimately is. Transpiration भी एक evaporation है। Transpiration क्या है? Transpiration is the process of water passing out from the surface of a plant or leaf. पत्ते या पौधे से जो पानी बाहर आता है उसको हम transpiration कहते हैं। Transpiration is essentially evaporation of water from leaves of the plant. Transpiration क्या है? It is a evaporation of water from leaves of the plant. पौधे के पत्तियों से वाटर का evaporate होना यही transpiration कहलाता है। To keep water cool, it is kept in earthenware containers. पानी को ठंडा रखने के लिए हम जो है मिट्टी से बने घड़े या सुराही में रखते हैं। ये भी जो एक कॉन्सेप्ट है वो इवेपोरेशन पे बेस्ड है। क्यों मटके का पानी, घड़े का पानी, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे आगे। सिमिलर टू द पोर्स इन कॉटन फैब्रिक, द पोर्स इन द earthen pots surface area allow for more evaporation। जिस तरीके से कॉटन फैब्रिक में पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी तरीके से इस मिट्टी के बर्तन में भी, इस मिट्टी के घड़े में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो अलाउ करते हैं वाटर को, रिश्ते रहते हैं बाहर के साइड में, पेनिट्रेट करते होते हैं, और जो पॉट की गर्मी है ना, पॉट का टेम्परेचर है, उसको यूज़ करते हैं टू चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। जब आपने पॉट के टेम्परेचर को यूज़ कर लिया तो पॉट का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। जब पॉट का टेम्परेचर कम हो गया तो ठंडा हो गया, तो उन अंदर की जो चीज़ है पानी, वो भी ठंडा हो जाता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द earthen pots cooling, effect of change in pressure on the state of matter। अभी तक हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर पे, अब हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। यहाँ देखिए हमने दिखाया है, यहाँ 3 फेज हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फाइन। सॉलिड से लिक्विड बना मेल्ट होकर के, सॉलिड से लिक्विड हुआ मेल्ट होकर के, लिक्विड से गैस बना इवेपोरेट होकर के, लिक्विड से गैस बना इवेपोरेशन, और गैस से सॉलिड फिर हुआ कन्वर्ट डिपोजिशन होकर के, लिक्विड से सॉलिड बना फ्रीज होकर के, ठंडा होकर के लिक्विड से सॉलिड बना, गैस से लिक्विड बनेगा वो भी ठंडा होकर के, जिसको हम एक नाम देते हैं कंडेंसेशन। तो गैस से लिक्विड कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हुआ फ्रीजिंग, और सॉलिड से गैस के बनने को अभी हमने एक्सप्लेन किया था सब्लिमेशन, जहाँ पर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से आपको गैसियस स्टेट मिलेगा, लिक्विड स्टेट नहीं मिलेगा, तो ये हो गया सब्लिमेशन। अगर हम सॉलिड से गैस कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो यहाँ पर हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया है डायग्राम के जरिए। बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेज। आप जब प्रेशर अप्लाई कीजिएगा, जब प्रेशर दीजिएगा, तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस हैं वो कम हो जाएंगे। Thus, by applying pressure and reducing temperature, we can convert liquid to solid। इस तरीके से हम जो है प्रेशर बढ़ा करके टेम्परेचर को कम करके कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड से सॉलिड एंड गैस टू लिक्विड। अगर हमें लिक्विड से सॉलिड करना है तो क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? लिक्विड टू सॉलिड मिलेगा या फिर गैस से लिक्विड मिलेगा। और अगर हमें सॉलिड से लिक्विड जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड से गैस जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसको हमने जूम करके दिखाया है, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन किया डायग्राम के ज़रिए, जूम करके दिखाया आपको।
Question answer. Give reasons. A gas fills completely the vessel in which it is kept. गैस जो है वो वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देता है, भर देता है जिसमें उसको डालते हैं. क्यों? वो इसलिए कि गैस के जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो सबसे लीस्ट होता है. गैस का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है. वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं. So it fills completely the vessel in which it is kept. There is low force of attraction between gas particles. The particle in the filled vessel are free to move about. जो particles हैं ना वो इधर उधर घूमते होते हैं haphazard manner में. The molecule of gas have high kinetic energy due to which they keep moving in all direction and hence fill the vessel completely in which they are kept. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. गैस जो है कंटेनर के वॉल पे प्रेशर बनाता होता है. यस, प्रेशर बनाता होता है क्योंकि ये क्या है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं सारे डायरेक्शन में. तो मूवमेंट के दौरान क्या होता है, वो जो वॉल है कंटेनर के उनसे वो टकराता होता है. हेंस इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. गैस है तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ही, तो इसलिए ये मूव कर रहा होता है हैफेजेड मैनर में इन ऑल डायरेक्शंस. Gaseous particles have the weakest attraction force. They are always moving in a haphazard manner. When a gas particle collides with the container's wall, it exerts force and thus pressure on the wall. A gas exerts pressure on the wall of the container because the molecules of the gas are in constant random motion due to high kinetic energy. These molecules constantly vibrate, move and hit the wall of the container, thereby exerting pressure on it. Next question, give reasons. We can easily move our hand in the air. हम आसानी से एयर में जो है ना अपने हाथ को घुमा सकते हैं. But to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. लेकिन इसी चीज़ को किसी सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड में अगर करना हो तो इसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा. क्यों? इसलिए कि जो एयर में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होते हैं. यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो हैफेजेड मैनर में मूव कर रहे होते हैं. हेंस हम आसानी से उनका जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर सकते हैं. लेकिन सॉलिड क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट है, रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें जो पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है. सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर द हैंड टू क्रॉस ब्लॉक ऑफ वुड. उसके लिए आपको कराटे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी. The boundaries between air particles are quite loose. They are long way apart and have a lot of space between them. As a result, we may move our hand freely in the air. The particles in a solid block, on the other hand, are bound together by strong force of attraction. As a result, there is either some or no space between them. As a result, we will require a karate expert. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. It is because the molecules of air has the less force of attraction between them, and a very small external force can separate them and pass through it. But in case of solid, the molecules have maximum force of attraction. The particles are tightly bound due to this force. Hence, large amount of external force is required to pass through solid. Next question, liquid generally have lower density than solid. Generally liquid का density solid से कम होता है. But you must have observed that ice floats on water. लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आइस जो है वाटर पे फ्लोट कर रहा होता है, जबकि आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर लिक्विड है. क्यों? इसलिए वाटर का जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट. और आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मेल्ट कर जाता है. जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है.
लेकिन डेंसिटी वाटर के केस में कितने डिग्री पे है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसलिए वाटर का डेंसिटी आइस से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको लिक्विड मिलेगा, वाटर मिलेगा, आइस तो मिलेगा नहीं भाई साहब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसलिए वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है आइस से। In general, the volume of liquid is more than the volume of solid because liquid particles are free to move, resulting in more volume. Ice, on the other hand, has a maximum density of water at 4 degree centigrade. 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। आइस इज़ लाइटर देन वाटर, इसलिए आइस जो हो गया वो वाटर से लाइटर हो गया एंड हैज़ अ लोअर डेंसिटी, बिकॉज जो मैक्सिमम डेंसिटी वो कितने डिग्री पे मिल रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। Ice floats on water. Ice is a solid, but its density is lower than water due to its structure. The molecule in ice make a cage-like structure with lot of vacant spaces. This makes ice floats on water. Next question. Convert the following temperature to Celsius scale. Celsius में convert करना आपको इस temperature को 300 K। हाँ, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेल्सियस में आप जो है ना, सेल्सियस में डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपने 273 प्लस कर दिया है तो ये जो टेम्परेचर मिलेगा ये आपको केल्विन में मिलेगा। मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ द कन्वर्जन फार्मूला। आपको सेल्सियस स्केल में 273 ऐड करना है तो आपको केल्विन स्केल पे वो टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे हमने पिछले स्लाइड में आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सिखाया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 32 ऐड कर देंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल पे आपको वो टेम्परेचर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको अगर आपको फ़ारेनहाइट में बताना तो कितना बताइएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपको केल्विन और सेल्सियस स्केल का है तो जो भी सेल्सियस स्केल है उसमें आप 273 ऐड कर दीजिएगा तो आपको केल्विन पे वो टेम्परेचर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 300 केल्विन, यहाँ केल्विन दिया है, सेल्सियस स्केल में निकालना है, आप उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, 273 माइनस कर दीजिए, आपको सेल्सियस स्केल पे वो टेम्परेचर मिल जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। सो 300 केल्विन इज इक्वल टू 300 माइनस 273, आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट उसी तरीके से 573 को केल्विन को आप चेंज कर लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें से भी आप 273 माइनस कर दीजिए, 273 माइनस कर दीजिए 573 में से, वो जो आ गया रिजल्ट वही आपका सेल्सियस में होगा। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा, कब, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, कौन सा स्टेट मिलेगा वाटर का, ऑब्वियस सी बात है गैसियस स्टेट मिलेगा आपको। 100 के बाद तो वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, 250 है तो गैसियस फेज मिलेंगे आपको, गैसियस स्टेट सिंस इट इज़ बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या मिलेगा आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों स्टेट मिलेंगे आपको, वाटर भी मिलेगा और वाटर वेपर भी मिलेगा, जिसका लेटेंट हीट मिल जाएगा तो वो तो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं तो वो लिक्विड में रहेंगे। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड यू विल गेट बोथ द स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। At 100 degree centigrade, it is a transition state as the water is at its boiling point, hence it would be present in both liquid and gaseous state. Next question. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? Change of state के दौरान temperature constant रहता है किसी भी substance के लिए, क्यों? It is due to the latent heat. As the heat supplied to increase the temperature of the substance is used up to transform the state of matter of the substance, hence the temperature stays constant. Temperature constant रहता है और latent heat की वजह से heat supply होता है ताकि जो substance है उसका temperature बढ़ जाए, जिससे वो अपने state को change कर सके। तो latent heat is required to change its state
During the change of state of any matter, heat is applied to the substance. The molecule of this matter use heat to overcome the force of attraction between the particles. At this period of time, temperature remain constant. This extra heat is acquired by the molecules in the form of hidden heat called the latent heat to change from one state of matter to the other state. इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको, फिर भी एक क्वेश्चन के जरिए इसको हमने समझाने की कोशिश की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. लिक्विफाई करना है गैस को तो क्या करना होगा, अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर को बढ़ाना होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है. प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है. अप्लाई द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर. It can be achieved by either increasing the pressure or decreasing the temperature, which ultimately leads to the reduction of spaces between molecules. तो प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर घटाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हो रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेस है ना वो रिड्यूस हो जाता है. हेंस जो गैस है ना वो लिक्विफाई हो जाता है. द एटमॉस्फेरिक गैसेज आर टेकन इन अ सिलेंडर. अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी तो कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक गैस को आपने एक सिलेंडर में ले लिया विथ पिस्टन फिटेड ऑन इट. The atmospheric gases are taken in a cylinder with piston fitted on it. By cooling and applying pressure on them, the gases can be liquefied. आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. Next question. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? क्यों आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 273 केल्विन पे, चूँकि 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर होता है, तो हमने समझाने के लिए आपको बोला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कूलिंग होती है आइस की दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. मीन्स आइस की कूलिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस की कूलिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर. क्यों? आइस से जब वाटर कन्वर्ट हो गया तो उसके अंदर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आ गया ना, इस वजह से उसका टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू आइस तो थोड़ा बढ़ ही जाएगा ना, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से. एट 273 K ice will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome fusion and transform into water. As a result, ice has a greater cooling impact than water at the same temperature since water doesn't absorb the excess heat from the medium. जैसे ही आइस से वाटर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 273 केल्विन पे, तो उसके अंदर लैटेंट हीट आ गया ना, इस वजह से. क्योंकि लैटेंट हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर. Ice at 273 K will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water. Hence, the cooling effect of ice is more than the water at the same temperature because water doesn't absorb this extra heat from the medium. Next question. What produce more severe burns, boiling water or steam? कौन ज़्यादा जलाएगा आपको, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? ऑब्वियस सी बात है स्टीम जलाएगा, क्योंकि स्टीम के अंदर क्या है, लैटेंट हीट भी है, एक्स्ट्रा हीट भी है, तभी वो स्टीम हुआ, तभी वो बॉइलिंग वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, बॉइलिंग वाटर स्टीम अगर बोथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है बिकॉज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज देयर इन स्टीम. सो द बर्निंग effect of steam will be more severe. Steam produces severe burns. It is because it is an exothermic reaction that releases a high amount of heat which it had consumed during vaporization. Steam at 100 degrees centigrade will produce more severe burn as extra heat is hidden in it is called latent heat, whereas the boiling water doesn't have this hidden heat. इसलिए जो स्टीम का बर्न है ना वो ज़्यादा सीवियर होता है. एक क्वेश्चन और देखते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग ए चेंज इन इट्स स्टेट. यहाँ पर आपको जो ए बी सी डी है ये बताना है आपको. ये डायग्राम दिया है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ए क्या होगा,
मेल्ट हो रहा है तभी लिक्विड होगा। सो ए विल बी द मेल्ट। और लिक्विड से गैस में जा रहा है तो बी क्या हो जाएगा? वेपोराइज, इवेपोरेशन। सॉलिड से लिक्विड में गया तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में गया तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। सॉलिड से गैस हुआ तो सब्लिमेशन। ए तो हो गया मेल्टिंग, बी हो गया आपका इवेपोरेशन, और ई हो गया आपका सॉलिड से गैस हो रहा है तो सब्लिमेशन। एंड गैस से सॉलिड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गैस से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन हो गया। लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, और लिक्विड से गैस से लिक्विड हो रहा है तो कंडेंसेशन। तो इस तरीके से हमने बता दिया, ए मेल्टिंग, बी इवेपोरेशन, सी कंडेंसेशन, डी सॉलिडिफिकेशन, ई सब्लिमेशन, एफ सॉलिडिफिकेशन। देखते हैं interconversion of three states of matter using temperature or pressure. Any state of matter can be turned into another. कोई भी state को आप चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। सॉलिड टू लिक्विड की है तो मेल्टिंग, फ्यूजन और लिक्विफैक्शन, कोई भी नाम दे दीजिए आप। तो हमने आपको यहाँ ए बताया था मेल्टिंग। बी लिक्विड टू गैस है तो लिक्विड से गैस जाएगा इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, जो हमने आपको बताया। सी गैस टू लिक्विड हो रहा है तो गैस से लिक्विड होगा तो कंडेंसेशन, जो हमने बताया आपको। डी लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, जो हमने समझाया आपको। ई सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन, ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। एफ गैस टू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन। इस तरीके से हमने सारे कंटेंट इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया। पहले लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।